وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ علي وزهر تجید ہو عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات میں ساری دیہڑی سارے ملک جھاکدا آیا میں انج صلوات پڑھو جائیں شیخ اور والے پڑھ جانے تسی بھی بے مزہ کردا جناب سید آزاد پوری کائنات تے احسان حسن حسین دی اماں دی ذات تے بلند تر دعا ہے پروردگار عالم مانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے مرشد کی ہمشیرہ بیمار ہیں ذکر حسین کا صدقہ مالک انہیں شفائے کو لیا تھا فرمائے میں سب کی دعائیں نہیں جانتا وقت بہت لگ جائے گا مشترکہ دعا مانگتے ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ پڑے ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں کے بیٹوں کو رزق عطا فرمائے شفقت شاہ جی نے کل بھی مجھے کہا میں بھول گیا آج پھر انہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے یہ جتنے احباب لاہور سے راولپنڈی سے جھنگ سے فیصل آباد سے کس کس کا میں نام لوں گا مالکن سب کی نوکریاں قبول فرمائیں مرشد زادے سے لے کے آخری ماتمی تک جو بول لیتے وہ آزک لائن اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود مل کے پڑھو بلند ہاں بھی اب ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلو خیر اس طرح کا ہوتا رہتا ہے ہاں آپ بالکل تسلی رکھیں ذرا بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جاتا اور کیا سنا جاتا دونوں ہاتھ بلند کرا کے مرشد نے نعرہ لگوا دیا اب میں جہاں ہاتھ بلند ہوئے تھے وہاں کی بات کرتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کو میرے جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا شاباش شاباش اتنے سارے بندے سانس بھی لو تو آواز آتی ہے بی بی آپ کو عزت دے کائنات کی مالکن آپ کو عزت دے معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا چاند چہروں سے ہی پر نور یہ راتیں کرنا شاباش یہی میں آرے شیخ برے کا یہی میں آرے شیخ برے کا میرے بچوں جیو سلامت رہو صدا آباد رہو اللہ اکبر بابا جی عجیب ہی مندر ہو گیا میں نے امام حسین نے پترہ کی قسم ہے چوٹھے سے تبرا ہوں تو ہم سلام ہے تو اڈی اس محنت نور سلام ہے اللہ اکبر عجیب ہی مندر ہو گیا میں اتھے باہر کھلوتا میں پچھلا سرا غازی آباد لاہور پڑھیا غازی آباد سے بندے میں مل گیا میں کہ تواڈے کول تے ٹائم ہے شاید انہوں نے کہا جی بس کل سن لیا
سانو چین کو نہیں آیا تے اسی آ گئے راضی گوائے انجی ہو رہا ہے یہ سارا شان حسین میرے سامنے نہیں بیٹھا راضی انہوں نے استاد دینا سال زندگی میں سنے ہیں یہ سارے وہ پتر بیٹھے نے انہاں 16-17 سال میں سنے سلام ہے تواڈے سنن نو تواڈے آن نو تواڈے بولن نو تواڈے پہنچن نو چوتھے مصرے تک میرا ایک پند ہے تواڈا ترلا ہے اوتے بولیاں جی پھر اودے بعد جی میں تواڈی طبیعت بن گئی معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا ہے تواڈے نعرے تو میں مجبور ہو گیا معتبر نسبت ذاتیں کرنا چاند چہروں سے ہی پر نور یہ راتیں کرنا ان مجالس میں SOPs کا مطلب یہ ہے فاصلہ رکھ کے بلا فصل کی باتیں جیو شیخ برا جیو شیخ برا علی بار والو ہاتھ اونچے جتنے ہاتھ علی کے ہیں اتنے اونچے جو علی کو سعید حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھا لو او میں صدقے نبی شاہ کس جنت میں لے آتا ہے مجھے بادشاہ سلام ہی میرا کیوں نہیں جیو میرے پتران کی خیر ہوئے اللہ ہوں جی جیو جی غازی استانے نے جسے علی کہنا آتا ہے وہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے بولے حیدری ایدہ کو نظام کل بہتر کر دے ان مجالس میں SOPs کا ہاتھوں پہ اٹھا لیا نبی نے علی کو یہ شیخ برا ہے مرشد دادا مجھے عزت محمد کی قسم ہے میں اتنا مطمئن ہوں کہ وہ شہر ہے جہاں میں نے سانس بھی لیا ہے نا اس شہر کے لوگوں نے مجھے اس کی قیمت دی ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں میں مانتا نہیں اس پنڈال میں ایک بندہ ایسا ہو جو چپ کر جائے ہاتھوں پہ اٹھا لیا نبی نے علی کو اب جو پہلے ہی علی تھا پتہ نہیں کتنا اونچا ہو گیا جی شاباش ہاں اور تیرے آنکھیں تو میں غدیری شروع کی تھی تو جوکری شروع کی تھی اللہ اکبر حیدری تاکہ صاحب جیووں پہ جو پہلے ہی علی تھا میں نے دیکھنا ہے غازی دا واسطہ بھائی کمر میرے کیا کھروے جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا بلا تشبیہ میں کون ہوتا ہوں تمثیل دینے والا تشبیہ دینے والا علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے فرمایا اللہم والے من والا ہو وعد من آدھا ہو جملے نہ ہو رسول کے اس سڑک کے چوک پہ مجھے گولی مار دینا ترجمہ نہ ہو مجھے زندگی ساری سننا نہیں اور سمجھ آگئی تو نہ بولا میں معافی نہیں کروں گا یہ منبر غدیر پہ سرور کے لفظ تھے یہ منبر غدیر پہ سرور کے لفظ تھے پروردگار نعمت عظمہ طویل کر یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو جو بھی علی کو چھوڑ دے اس کو ذلیل سلمان جیو میرا بچہ میرے پتر جیون پورا شیخ پورا سلامت رہے ہو لاہور والو ہو چریوت والو ہو غازی عزت دے تمہیں ہاں سعید جیو سچ بتاؤ نعرہ ایسا بنتا تھا کلاں کے ہزاروں کے مجمع میں پورا شہر سنے حیدری شیخ مصطفیٰ جی جیو غازی استانے سرکار محمد المصطفیٰ علی المرتضی جناب سیدہ جناب امام حسن مجتبیٰ امام حسن تھینک یو بیٹا اللہ آپ کو عزت دے بیٹا مداری صاحب کے لہو کو تو ایسا سننا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ بھائی عزیز ممتاز لگیے سن کی بچی بیمار ہے مولا شفا دے مون میرے جملے تیری دسترس میں آ رہے ہیں نا میں تیرے کیمرے کی زد میں ہوں نا چلا پھر 4 میں سے اور قابو کر 8 اور 1 9 کا تصرف سمجھ ذرا
गदीर कब हुई है? क्या दिन था? 18 बोल जिलहज। पता है तुझे, क्यों घबरा रहा है? 18 जिलहज को गदीर हुई है। हाँ सकराइन साहब जी है ना? ये आज बाबा जी दुआ करे आज ये एक, मैं कह रहा हूँ 8 और 1 9 का तसर्रुफ समझ जरा। दरअसल आज ईद है बिन्ते रसूल की। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ जेड़े बाहर सड़क ते खड़े हो, जेड़े नौकर हुसैन दी अम्मा दे काम बड़ा औखा जे ते मैनू ना सारे दिन दी मजलसा एक पासे ते शेखपुरे दी हाजरी दा सवाद एक पासे। मैं सारी दिहाड़ी तुहाडी कल दी समात दे नशे च रहा जे ते मैं उस तो उत्ते तुर जाना। तुहानू वास्ता इस बीबी दा गल न करे जे हाथ हो रे का तसर्रुफ समझ जरा। दरअसल आज ईद है बिन्ते रसूल की। 9 का आदत चुना है खुदा ने, इसीलिए हैदर की ताज पोशी है मर्जी बतूल। कमर जीवो, मुर्शद जीवो, तेरी नस्ल जीवे, अमीर जीवो जीवो। अल्लाह अकबर। जी जी बाबा जी, सदके इन बच्चों की खैर हो। रियाल जियो, ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे शादाब रहे। जी चल जाफरी उठे खलो गया, उठे ही बोल हैदरी। इन जान दे गरीब नू क्यों इन तंग करता है? जान दे जा बेटा जा जा। शाबाश। और जुत्ती वड्डी ना ले जा, अपनी ले जा। आपके क्या कहने? 9 का आदत चुना है। एक औखा पिंड है, जिंदगी का केड़ा पता केड़े मोड़ ते मुक जाए। अज जी शेखपुरा साहब दा विच करिए पिंड बहुत ही दिल करता था। बादशाह हुसैन कमाए ने मैं पिंडा कराची पढ़िया, 18 जिलहज नूं पढ़िया ते मैं तस्लीम पिया करदा भी इस तो वड्डी दात नहीं सी ते मेरा दिल कर गया। मैं कराची 18 जिलहज तो बाद ये पिंडा ये सफर पढ़िया ही नहीं, मेरी दात का मजा खराब ना हो। मेरे अंदर एक नशा है ते मजमून बन गया। जुड़ गए ने बंदे गदीर सुनते। जहां ने हरफो सुखन में देखे बड़े बड़े बेनजीर मिंबर। जी मैनू वेखना और तेरी खैर होवे, तुहाडियां नस्लां जीवन, इन्हां पुत्रां दी खैर होवे। ओ बाहर वाला आखिरी मातमी जिए, वो जो सामने खड़े हो सलामत रहो। जहां ने हरफो सुखन में देखे। आपकी क्या बात है बेटा? जहां ने हरफो सुखन में। मैं नौकर जो हूं, मैं नौकर जो हूं, मैं तुहाडे आखना मिंबर ते तुहाडे तो लैके बाहर वाले आखिरी मातमी तक तुसां पूरा जहान सुनिया होया है। इस तो पहले इंज दा काफिया 4 काफिए इको मिसरे च मैं पढ़न लगा फरियाद। इस तो पहले किसी बंदे लिए सन 4 काफिए इंज दे इके मिसरे लिखे होवन ते कोई दाद नहीं, न लिखे होवन ते सारा पिंडाल बोले जहां ने हरफो सुखन में देखे बड़े बड़े बेनजीर मिंबर। एक लफ्ज है जिदार। जिदार कहते हैं अरबी में दीवार को। जिदार काबा को छू के देखो, वहां है अब तक लकीर मिंबर। शाबाश, बहुत शुक्रिया मुर्शद, बहुत मेहरबानी। बड़ा औखा सफर है, बड़ा औखा सफर है। जी मुर्शद आदा सलाम है आपको, भाईजान सलाम है आपको। यहाँ ने हरफ सुखन में देखे बड़े बड़े बेनजीर मिंबर। जिदार काबा को छू के देखो, वहाँ है अब तक लकीर मिंबर। ये छोली फैलाए खड़ा हूँ, जाकिर समझो, नौकर समझो, शायर समझो, मेहमान समझो, बेटा समझो। तुम में से एक एक आदमी को विलायत अली की कसम, जितना तुम्हारे अंदर अली हो उतना बोलना। 18 जिलहज की से पहर को हुए हैं ये 4 चांद यकजा। कबीर, बानी, बशीर, जाकिर, अमीर, मौजू, गदीर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे पुत्रा की खैर थोड़े सुनन दे क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। अच्छा जीवो नस्ल जीवन थोड़ी खानों में थके हो। अभी तो शुरू किया मैंने रल के हैदरी।
चलो चलो चलो, इतना मैं चाह रहा था। आप जिए बेटा, आप सलामत रहे। बहुत शौक था हसनैन के नाना के दिल में हज पे जाने का। सच्ची दसो, जिस बंदे इस गल से भी इंज किया है उस भी कूड़ गुणा किया इंज नहीं माशा। मैं कहा हाँ एडा सौखा जुमला ते शेखूपुरा ते मेरी मर्जी के पुत्र सामने। बड़ा शौक था हसनैन के नाना के दिल में हज पे जाने का। 5 हिजरी को अल्लाह के इरादे ने हज का इरादा कर लिया। बंद कर दो, बंद कर दो। 5 हिजरी को अल्लाह के इरादे ने हज का इरादा कर लिया। रसूल घर से इरादा करके निकलने लगे। फनज़ल जिब्राइल नाज़िल हो गए। मुस्तफ़ा को अल्लाह का सलाम दिया। सलाम के बाद सलाम को सलाम का पैगाम दिया। बेटा मैंने जो ये जुमला पूरे मुल्क में नहीं कहा तो तुम्हारे आसरे पे कहा है और तुम भी थक गए हो। मोहम्मद को अल्लाह का हकीम साहब जी वो सलाम दिया। सलाम के बाद सलाम को सलाम का पैगाम दिया। या रसूल अल्लाह आप हज पे जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अभी हालात साजगार नहीं है। बेशक आपके अहबाब की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें नजर बद से महफूज फरमाए। लेकिन आप भी जानते हैं, अल्लाह भी बाखबर है कि ये दाएं बाएं रहने वाले अक्सर मुश्किल में दाएं बाएं हो जाते हैं। आप जिए, यही मेरी कीमत है। ये मेरा कल है, ये बच्चे मेरा मुस्तकबिल है, यही मेरा कल है। बाबा जी सलाम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ये अक्सर दाएं बाएं रहने वाले मुश्किल में। बेटा जी थके तो नहीं हो ना, मुश्किल में जियो, मुश्किल में दाएं बाएं हो जाते हैं। रसूल हज पे न गए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे ही रहे, सफेद दाढ़ियां और हाथ ऊंचे। 6 हिजरी को रसूल घर से निकले। रास्ते में कुरैश सद्दे राह हो गए। 15 मिनट मुर्शिद मैंने मेरी मर्जी का सुनना है, फिर मैं थोड़ी मर्जी का पढ़ा। 15 मिनट मेरी मर्जी का सुनना तो आज गौर मेरे ते रखना है। एक एक लफ्ज की कीमत चाहिए। रसूल घर से चले, कुरैश रास्ते में सद्दे राह हो गए। अरब के काफिर और मुशरिक रास्ते की दीवार बन गए। ये आपका हमारा मुआहदा यही है, आप अभी हज पे नहीं जा सकते। रसूल वापस आ गए। बेटा मुझे देखना है, लो मुझे देखना है, आप अभी हज पे नहीं जा सकते। रसूल फिर वापस चले गए। 7 हिजरी को घर से निकले, मक्का पहुंच गए। 3 दिन क़याम फरमाया। महसूस किया अगर हज पढ़ता हूँ हुर्मत काबा पामाल होती है। मोहम्मद हज किए बगैर वापस आ गए। मैं इस पहले हलाली से लेके वो अपनी आंख में खड़े हुए आखिरी हलाली तक मैशर के दिन दोनों हाथ माथे पे रख के उस इज्जतदार माँ के बेटे को सलाम करूंगा जिसे जुमला समझ आ गया और वो बोल पड़ा। मोहम्मद 3 दिन मक्के में रह के हज किए बगैर वापस आ गए कि हुर्मत काबा पामाल। खबरदार, आज के बाद मेरे हुसैन पे एतराज न करना कि हुसैन एहराम तोड़ के क्यों चला गया। 5वें मोहम्मद ने वही किया है जो पहले मोहम्मद। थोड़ी नस्ल जीवे। हाथ दोवें ऊंचे ऊंचे ऊंचे, हाय दरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी बाबा जी मुर्शिद जी सलाम जे मेरा लख बारी बिस्मिल्लाह। धोनी जियो मेरे पुत्रों की खैर हो। मेरा बेटा आपके हाथ ऊंचे ही रहे, अल्लाह करे किसी मातमी को यूं ना करना पड़े। हाय दरी अगर शादी दुआए मातमी का हाथ इत्थे ही रहे, इत्थे ना करना पड़े। 5वें मोहम्मद ने वही किया है जो पहले मोहम्मद ने किया था। शेखपुरे वाले हो, दिल बड़ा करता पे जो तुसी बोलो जुज ने वही किया है जो कुल ने किया था। हाय 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 हाय, सदके 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 हो जान सलाम है तुझे। वो कहाँ से ले आए हो यार ये पिंडाल, कहाँ से ले आए हो बादशाह। ये इतने बंदे उर्दू सुनने वाले, ये फरिश्ते आए हुए हैं, ये मलाइका उतरे हुए हैं, ये करोबियाँ आए हुए हैं, ये क्या हो गया शेखों?
अल्लाह अकबर। ये क्या हो गया शेखों पर? ये मजमा देख के वैसे ही गदीर पढ़ने को दिल करता। अल्लाह अकबर। जुज़ ने वही किया है जो कुल ने किया था। आज हिजरी को मोहम्मद फातिह मक्का की हैसियत से मक्का में दाखिल हो गए। अल्लाह के घर के दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान किया, आज जो अल्लाह के घर में आ जाए उसे अमान है, जो अपने घर चला जाए उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर आ जाए उसे भी अमान है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपके बच्चों के मातमियों का भी नौकर हूँ। किसी मातमी की जूती तले इजाज़त लिखा हुआ है शौकत रजा शौकत। ये सामने अल्लाह का घर है, हर बंदे का अपना घर है, बीच में अबू सुफियान कहाँ से आ गया? फरमाया शौकत, जब भी कोई तहरीक उठती है ना, उसके तीन किरदार पैदा हो जाते हैं। एक उसे मान लेता है, वो मोमिन होता है। एक नहीं मानता, वो काफिर होता है। तीसरा मान के नहीं मानता, वो मुनाफिक होता है। थकी नहीं तोने, थकना नहीं। गाजी का वास्ता, गदीर वाले का वास्ता, लाला कमर, थकना नहीं आज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मुर्शिदादा जी, करोड़ वारी सलाम है तुहानू। तुहाडे क्या कहने, तुहाडे बोलन दे क्या कहने? किस जन्नत में आ गए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मान के नहीं मानता, वो मुनाफिक होता है। मैं आज तीनों किरदार क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो अल्लाह के घर चला जाएगा वो मोमिन है, जो अपने घर चला जाएगा वो काफिर है, जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा वो हाय हाय हाय, की स्वाद ले मुर्शिदा ने। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो गाजीस्तान ने चला है हाथ ऊंचे ही रमान। अल्लाह करे मैं यार कायम रहे। कॉलर माइक भी मंगवा दे मुझे कल। जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा वो मुनाफिक है। और यही वो दिन है जब नबी ने अली से कहा, या अली, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे शानों पे चल के बुत ना तोड़ दूं। खोल दे हाथ, गाजी की कसम में कुछ नहीं होता। मैं ना मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे शानों पे चढ़ के बुत ना तोड़ दूं। शेखुपुरा ने बोले तो फिर इस जुमले से पूरे मुल्क किसी भी नहीं बोलना। फिर आज तो बाद से जुमला आखना ही नहीं। अली ने यूं दोनों कांधे झुकाए और दोनों हाथ बांध के कहा, मुझे तो बाप ने सिखाया यही है कि मोहम्मद का बोझ उठाना। हाय हाय हाय। ओ मैं सदके, मैं हजार शौकत कुर्बान करा। दोवें हाथ ऊंचे, हाय अली। हाय अली। अली ने कहा जी मुझे तो बाप ने सिखाई यही है कि मोहम्मद, मैं नौकर जो तेरा, मोहम्मद का बोझ उठाना है। ये मैं हाजिर झुक रहा था अली। फनज़र जिब्राइल नाज़िल हुए, मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया। सलाम के बाद पैगाम दिया, भाई मुस्तफ़ा कल तक यही नशा रहेगा इस जुमले का। मिंबर पे ऐलान हो गया, आपके सलाम का भी शुक्रिया। बस अली झुक रहे थे। जिब्राइल ने आके कहा, अल्लाह फरमा रहा है आप अली के शानों पे नहीं, अली आपके शानों, अली आपके शानों, अली आपके शानों पे। सुबह हो जाए मैं यही कहता रहूंगा, अली आपके शानों पे, अली आपके शानों पे, अली आपके शानों पे, अली आपके शानों पे। आप अली, शाबाश शाब। जी बाबा जी, जी मुर्शिद, जी सखी। हाय अली, आप अली के शानों पे नहीं, अली मैं न हाय की स्वाद आया। मुर्शिद आलम ने यही कहना रहा सवेर तक, अली आपके शानों पे, अली आपके शानों पे। नबी ने कहा तोड़ने तो बुत है, मैं तोड़ूं या अली तोड़े, फर्क क्या है? जिब्राइल ने कहा पता नहीं। अल्लाह फरमा रहे जब कोई मोहर लगाई जाती है ना, जितने वजन से दबा के लगाई जाए उतनी अच्छी लगती है। तेरे एक शाने पे ला इलाहा इल्लल्लाह का मोहर है, दूसरे शाने पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर है। अल्लाह के पास अलीयुन वलीउल्लाह से बड़ा वजन ही नहीं। पूरा शहर बोले, पूरा शेखुपुरा सुने।
जी हैं, ये अदादार जी हैं, ये शेखुपुरा जी हैं, ये मातमी सलामत हैं। बादशाह तुम्हें इज्जत दे, मेरे बच्चों हुसैन तुम्हें इज्जत दे। इन लाडलों ने, ये इतने इतने थे, इन्होंने मुझे सुनना शुरू किया। अल्लाह ही ने इज्जत दे। अल्लाह के पास अली और वली से बड़ा वजन ही नहीं है। बादशाह जी इत्थे आइए रो भाई, ना पढ़ी तो मैं नींदरा नहीं आना, नींदर ना आई तो सवेर तक खुदा ने खासा आवाज खराब हो जाना। हाँ तो मैं पढ़न दो, इत्थे आइए अली वारे से, मेरा दिल पे करता मैंने पढ़न दो। नबी ने कहा बस इसीलिए अली को उठा लूं। जिब्रील ने कहा अल्लाह फरमा रहे मोहम्मद तेरे जितने आशिक हैं, तेरे जितने चाहने वाले, बेटा एक मिनट बैठ जा, एक मिनट बैठ जा, तेरे जितने आशिक हैं, तेरे जितने चाहने वाले हैं, जितने तुझसे बैठ जा, ठीक करके सिट डाउन, आराम से बैठ जा, तेरे जितने आशिक हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने प्यार करने वाले हैं, जितने तुझ पे मरने वाले हैं, जितने तुझसे प्यार करने वाले हैं, सबकी आदत बनी हुई है तुझे जब मिलते हैं, जहां मिलते हैं, जिस मोड़ पे मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं, जिस मैदान में मिलते हैं, झुक के तेरे शानों का बोसा लेते हैं। अल्लाह चाह रहा है तू अली को अपने शानों पे सवार करा दे। फतेह मक्का की फजीलत जिसे याद आएगी, तेरे भाई की मवद्दत का आलम चूमेगा, और जो भी चूमेगा मोहम्मद तेरे इन शानों को, वो हकीकत में तो हैदर के कदम जो मुर्शिद जी लाला जी, जी लाला जी, नहीं मैं थोड़े से कौन बता रहा, तुझे क्यों मशहूर थक गए हो या शेखुपुरे मिजाज बदल गया नारे का? हाय दरी जो भी चूमेगा मोहम्मद तेरे निशानों को, वो हकीकत में तो हैदर के, वो हकीकत में तो हैदर के कदम चूमेगा। फातिह मक्का की हैसियत से रह के भी रसूल हज किए बगैर वापस आ गए। नाराज हो गए। 41 किताबां इकट्ठियां करके मैं मजमून इकट्ठा किया है, एक जुमला कितों, एक जुमला कितों, एक जुमला कितों, जिन्हें तू हाथ हाथ रख के सुनी जाना। ये मैच थोड़ी है, मैदान थोड़ी है, तू इंज बैठा जिवें स्कोर गिनदा पिया हो। मेरे हल वे गल समझ आ रही नहीं आ रही? वो भी हारन वाली टीम का बंदा जिवें बैठा होंदा यार की बने। मेरे हल वे वो मैं बिस्मिल्लाह कर लखन वाली आओ आओ, बड़ी जगह आ जाओ गल ही कोई, बिस्मिल्लाह कर। वो हकीकत में तो हैदर के कदम चूमेगा। बिस्मिल्लाह कर आओ मुर्शिद आओ। वो हकीकत में तुसी मैनू वेखना है बाबा जी है तशीला ने मातमी ने सरकार दे एहतराम वाजिब सैयद ने आले रसूल ने, वो हकीकत में तो हैदर के कदम चूमेगा। मोहम्मद हज किए बगैर वापस आ गए। 9 हिजरी को हुक्म दिया याली मक्का जाओ और रसूमात हज को शिरक की गंदगी से पाक कर दो। रसूमात हज को सलाम है आपको, सलाम है आपको। खरीद के ले गए आप आज शौकत को, जो इतने मुश्किल जुमले पे हाथ यहाँ रख के बैठे हुए हो। शिरक की मौला की कसम है जो अंदर बैठे हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जो बाहर खड़े हैं मैं उनका मकरूज हो गया हूँ। इतनी मोहब्बत ने शेखुपुर ने दी, इतने 4-5 साल के तब्तुल के बाद मैं हाजिर हुआ और तुमने मोहब्बतों की इंतहा कर दी, निछावर कर दिया प्यार तुमने। गाजी तुम्हें इज्जत दे। याली रसूमात हज को शिरक की आलूदगियों से मुझे शिरक की आलूदगियों से पाक कर दो। देर से आयो, अब मजा लेना इसका। शिरक की आलूदगियों से पाक कर दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, खैबर भी अली, खंदक भी अली, हर मैदान भी अली, हर तकलीफ भी अली, ऊपर से अब ये काम भी अली जाए। इतना सारा लश्कर है आपका, इतने इर्द गिर्द अच्छे मजेदार बड़े लोग तशरीफ फरमाए हैं, किसी से कह दे जाके ये काम कर ले, ये भी अली को। और मैं शौकत मैं भी समझता हूँ अली ने बड़े काम कर लिए, लेकिन अब मजबूरी है, अली के अलावा किसी को भेजा नहीं जा सकता। रसूमात हज को शिरक की गंदगी से पाक करना है, भेजना उसे है जिसने इतनी देर के लिए भी शिरक न किया हो।
जी शाबाश, जी 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 जी। ये इतनी देर समझ आई है? मेरी आंखें देखो, ये पलक झपकना, ये पलक झपकना। बच्चा जियो मेरे पुत्र, राधे अली जियो। अली ना ना, अली हक का नारा सारे लगाओ। अली हक, अली अली हक, हक रसूमात हज को तेरे हाथ की खैर होवे, गाजी इस तरह नहीं है, जुबान सलामत रहे। रसूमात हज को शिरक की आलूदगियों से पाक कर दो, काम हो गया। 10 हिजरी को हुक्म व हालात साजगार है, फजा खुशगवार है, शजर पे समर लदे हुए हैं, दरख्त फलों समेत मुंतजिर हैं, फूल कलियों समेत राहों में गिरे पड़े हैं। तेरे कदम की एक एक जुम्बिश पे कायनात कुर्बान होने को तैयार है। हालात बड़े मज़ेदार हो गए हैं, अब तुम हज पे जा सकते हो। ऐलान कर दिया मुस्तफ़ा ने, इस साल हम हज पे जाएंगे। बस ऐलान की देर थी, ये खबर खुशबू की तरह फैल गई। किससे इसकी कीमत लूं, किसको सुनाऊं, कहाँ चला जाऊं, तो किधर जाऊं बाबा? ये खबर खुशबू की तरह फैल गई। ये एहसास ही बड़ा खुशगवार था कि हज पे जाना है, रसूल भी है, बतूल भी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये बंदे नहीं कहते बाबा जी मैं फलाने मुर्शद नाल हज पे चले हाँ, मैं फलाने मातमी नाल करबला पाक चले हाँ, तो उसे ख्याल से रसूल भी है, अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। इसी हज के सफर से वापसी पे 18 ज़िलहज को मैदान गदीर में एक बच्चा सिर्फ 5 दिन का था। इसी मैदान गदीर में एक बच्चा सिर्फ 5 दिन का था जब उसके कान पे मोहम्मद की आवाज़ आई, मन कुन तो मौला हो फहादा अली और मौला हो। वो बच्चा जब जवान हुआ तो मोहम्मद इब्न अबी बकर कहलाया। ये मेरी जिम्मेदारी कभी नहीं रही, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने एक ही काम करना है, एक ही काम मुझे आता है, मैंने पढ़ना है। जिसे मेरी समझ नहीं आ रही वो अपनी एनर्जी वेस्ट न करे। सॉरी, मैं अपने लफ्जों का नाम है, शहजादी आपको इज्जत दी। लुत्फ की बात यह है कि अली यमन गए हुए थे तबलीग दीन के लिए, ईमान दीन बांटने गया हुआ था। मैं बाबा जवाद शाह जी तो एक बार ये सुनाया, मैं कराची पढ़ के मैं निकले हाँ, इमाम बारगाह के बाहर पे निकलता तो एक बंदा दूसरे तो पूछा कैसा पढ़ा? पढ़ा तो गजब है, थका देता है। मौला दी कसम है, मैं कन्न ना सुने, आदत थका देता है। एक एक जुमले पे दाद देनी पड़ती है, क्या करें? अभी पिछले जुमले के मजे में हूँ तो उससे आगे उससे बड़ा जुमला कह देता है। और मैं थोड़ा की करा ते अपना की करा, मैं दसो इतने करम पाका नहीं है, तो जी को कोशिश करो नाल नाल रल दे आओ ताकि मैं थोड़ा जहा सफर और कर ला। ठीक है, अली ईमान समझ, ईमान दीन समझाने जी मैं तू गाजी इस्ता देनी हाय ईमान दीन समझाने यमन गया हुआ था। रसूल ने तेज रफ्तार घोड़े के सवार को यमन भेजा, खत लिख के, या अली अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं साहबा के साथ हज के लिए मदीने से निकलने लगा हूँ। या अली मैं मदीने से निकलता हूँ, आप यमन से निकले। मक्का और यमन की दो राही शाहरा पे अगर मैं पहले आ गया मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अगर आप पहले आ जाए तो मेरा इंतज़ार कीजिएगा, ताकि ज़माने को अभी से ये पैगाम चला जाए कि मासूम का इंतज़ार करना इबादत है। ये है शेख बुरा। लाला जी राजी हो ना, राजी हो ना? अल्लाह अकबर। ये है शेख बुरा, इसे कहते हैं शेख बुरा। करोड़ सलाम, दोनों हाथ मेरे माथे पे। भाई मुस्तफ़ा तेरे हाथ को ही सलाम, तेरे मेयार को ही सलाम। आप पहले आ गए, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। शाबाश शाबाश, हैदरी
آپ پہلے آ گئے آپ میرا انتظار کیجیے گا, میں پہلے آ گیا میں آپ کا انتظار کروں گا. ادھر سے علی چلے, ادھر سے نبی نے تیاری کی. 26 ذیقعدہ 10 ہجری, 26 ذیقعدہ 10 ہجری, 22 فروری 633 عیسوی. 26 ذیقعدہ 10 ہجری, محنت کی قیمت دیتی کرو. 22 فروری 633 عیسوی, ہفتے کی صبح کی نماز پڑھائی محمد نے. نماز پڑھا کے غسل کیا سلطان ممکنات نے. غسل فرما کے سفید رنگ کی ایک تہمد, ایک چادر یہاں سے لنگوٹ بنا کے باندھنا شروع کی. پاؤں کے ٹخنوں تک سفید رنگ کی ایک چادر باندھی. ہلکی زرد سی ایک چادر اپنے شانے پہ ڈال کے ننگے سر ننگے پاؤں 92,000 بندہ اسی لباس میں ساتھ لے کے ملنگانہ کیفیت بنا کے. شاباش 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 شاباش. تمہاری نسلیں جیے, تمہارے بچے جیے. اتنا ہی پڑھنا تھا, اتنا ہی پڑھنا سی بابا جی. راضی اس طرح دینے نتیجے پہ آگے راضی نے بھیجے. ملنگانہ حیات بنا کے ملنگانہ شیخ پورے میں امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا شوکت کہہ رہا ہے حج پہ شوکت رضا جائے یا نواز شریف, حج پہ بابا بابر شادی جائیں یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عربی جائے, اجمی جائے, ایرانی جائے, مکی جائے, مدنی جائے. 26 ذیقعدہ سے لے کے آج تک قیامت کی فجر تک یہی ملنگانہ لباس حاجیوں کی یونیفارم بن گیا ہے. نہیں دل کرتا تو میں بس کر دینا, تھک گئے ہو تو میں کی کرا, میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا. یہی ملنگانہ لباس. کی لالا جی حیدری بابر شاہ جی راتی میں وعدہ کیتا لالے کمر نہ رانے کمر نے میں وعدہ لے آئے یار ایڈی داد بندے دندے پہنے پھر تو لڑتا کیوں, پھر تو داد کیوں منگنا ہے بھائی. اسی داد دے دے کے تھک گئے ہیں, تیرے تو یاد تھک گئے ہیں, پھر تو انہیں بولو میں راتی وعدہ کیتا میں نہیں آکھاں گا بولو. ہن میرا وعدہ میرے قابو وچ نہیں. مینوں رانے کمر تو ایک جملے دی چھٹی لے دیو, اے غازی دا واسطے جے مینوں معاف کریا سمجھ آوے تے بولے جے. علی 12,000 افراد کو لے کے پہنچے, نبی علی کا انتظار کر رہے تھے. نبی راہوار سے اترے, علی راہوار سے اترا. علی نے نبی کے پاؤں چومے, نبی نے علی کا منہ چوما. پہلے درجے کی امامت نے آخری درجے کی رسالت کو سلام کیا, آخری درجے کی رسالت نے پہلے درجے کی امامت کو پیار کیا. ولایت جی بھر کے ایک دوسرے سے ملی, دونوں بھائیوں نے ولایت جی بھر کے ایک دوسرے سے ملی. ولایت جی بھر کے لالا کمر میں اٹھا دوں انہوں, ولایت جی بھر کے ایک دوسرے سے ملی. نبی نے علی کا منہ چوم کے کہا یا علی میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں تکلیف نہ دیتا, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں تمہیں اتنی دور سے بلاتا نہ, بس یا علی میرا دل تھا کہ جب میں کعبے میں جاؤں اور میری خالق سے ملاقات ہو تو گھر کا مالک بھی میرے ساتھ ہو. بسم اللہ. یہ نہ کرو مرشد. ہاں ہزاروں سال جی, سدا شکر سدا سلامت رہو, سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہے. میں بندن جانتا بھی نہیں, میں شیخ پورے آئی ہاں, باہر گری تے میں بہ گیا. عزیز مسائب پردہ پیاسی مجھے اچھے لگتا, میں دوران مسائب مجمع چیر کے جاؤں. میں اسے خلاف آداب سمجھتا ہوں, خلاف ازاد سمجھتا ہوں. اپنا اپنا نظام ہے ہر بندے کی تہذیب کا. ہاں مجھے کسی بزرگ نے کہا جی تھوڑا جہاں چھیتی آ جاؤ, اسی دور تو آنے ہیں. میں ان سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दूर से आते हैं। अल्लाह अकबर, सदके 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 जी मुर्शिद, मैं नौकर जो हूँ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया? बिल्कुल इजाज़त दे रहा हूँ, अगर किसी को उठना है तो उठ के चला जाए। मैं कम से कम 10 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, जो बंदा बर्दाश्त करे वो बैठे, किसी गर्मी लग रही हो चला जाए। वास्ता तुम्हें अली की बेटी की गुर्बतों का, दौरान मसाइब न उठना। तुम जानते नहीं हो ये जो मसाइब है ना बाबा सकलैन शाह, ये जनाजा है बतूल के बच्चों का, और बतूल आई हुई है इन मस्तूरात में। और कोई माँ के सामने बेटों का जनाजा छोड़ के चला जाए, हाय 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 हाय। जी बादशाह, जी जी मुर्शिद, सलाम है मेरा। मैंने कहा कोई माँ के सामने नहीं पढ़ता ज़्यादा, 6 या 7 मिनट, 4-5 फोन मैंने सिर्फ कल में सुने। शौकत भाई इतना ज़्यादा मसाइब न पढ़ो, पढ़ता नहीं हूँ मैं, सही 5 मिनट पढ़ देगा। वैसे मुझे बताओ मसाइब पढ़ने की रातें तो यही है ना यार। आपको अंदाज़ा है कि आज अली की बेटी बेटों के कब्रिस्तान आ गई है। बादशाह ये आखना सौखा है, ये आखना सौखा है कि अली की बेटी बेटों के कब्रिस्तान आ गई। आज जब कहा है ना हुसैन ने, मैं पढ़ूंगा तैयारी, मुझे मुर्शिदादे ने हुक्म किया तैयारी का। एक जुमला मुझे करबला मेरे मुंह से निकल गई है, तो मुझे एक जुमले की इजाजत है। बाबा जी वादा हो गया, सारी रात क्रिया करोगे, पुत्र समझ के मैं दुआ करोगे। करबला पहुंचे ना, और बादशाह हुसैन ने कहा अब्बास यहीं खेमे लगा दे। लगे हुए खेमे में गाजी ने हुसैन के पाँव पे हाथ रखेगा, ये कोई अली की बेटी के रहने की जगह है। बेआब हो गया दश्त को जा, ये जंगल को जा, अली की बेटियां हाथ मारा कर राजी हो जाती है मोहम्मद की बेटी। अल्लाह अकबर, बेआब हो गया दश्त को जा, या ज़हरा आ गई सीनी, बेआब हो गया जंगल को जा, अली की बेटियां को जा, ये को मेरी मलका के रहने की जगह है। बुला लिया अब्बास मेरे करीब आ। बादशाह जी अद्धा मिनट मैंने वेख्या जे, तुस रज के रोने जे, तुम जुमला अपने गया थे। फरमाते अब्बास आज क्या है? मौला 2 मुहर्रम, 8 दिन के बाद मैं यहाँ जन्नत बना दूंगा, यहाँ तेरा महल होगा। अकबर को अपने पास सुलाऊंगा, जितना असगर मिल गया उतना। अगों पढ़ना जो अच्छा पढ़ता नहीं सी। चलो जी मां शिया है ना, और मां का वास्ता एक बारी हाथ जरूर मारो, एक बारी हाथ जरूर मारे जी मां शिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना असगर मिल गया। मैं चाह नहीं रहा मैं बादशाह असगर की शहादत से पहले कोई जुमला कहूँ। इज्जत मोहम्मद की कसम है, इतना मिला ही नहीं असगर के उसकी कब्र बनाई जाए। हाय 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 हाय, पता नहीं मैं की पढ़ गया, पता नहीं तुसा की सुने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मसाइब के लम्हों में ना मुझे हुसैन का एक मातमी शबीर बड़ा याद आ रहा है। मौला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। वो रौनक था जिक्र हुसैन की, मौला ने उसे अपने पास बुला लिया है। शबीर तो मुझे रोता था, मेरे सामने बैठ के रो, मेरे अकबर के सामने बैठ के मातम कर, मेरे अब्बास के कदमों में बैठ के मातम कर। क्या हाल हो गया सैयदादा। अल्लाह अकबर। 4 मिनट गिन के एक जुमला और मुझे पढ़ने देना है। फरमाते अब्बास इधर आ, मैं यहाँ जन्नत बनाऊंगा, ये मेरे औन का शहर, ये मेरे मोहम्मद का शहर, ये मेरे मेहमानों का शहर, ये मेरे मेजबानों का शहर। यहाँ मेरा हबीब होगा, यहाँ मेरा हुर होगा, यहाँ मेरा जौन होगा, यहाँ गंजे शोहदा होगा, यहाँ ढेर सारे शहीद अली हसन। सारी रात तेरी मातम करते गुजर जानी है। हुसैन जन्नत बना के भाई से बातें कर रहे थे, पता नहीं किस वक्त बहन आ गई। बहन जन्नत बनती देखती रही, तुम मातम करना मेरी बेटियां, शायद इन्हें समझ ना आए। एकदम ऊपर से बोली हुसैन तेरे इतने बड़े शहर में एक कब्र की जगह और नहीं। हुसैन मैं तेरी गरीब बहन हूँ, मैं तेरी उजड़ी बहन हूँ, मैं तेरी लुटी हुई बहन हूँ। हुसैन मैं तेरी जी 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 जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलाम है बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। जी लाला की करा, 4 मिनट और पढ़ लवा है इजाजत, 4 मिनट और पढ़ लवा। अल्लाह अकबर। खबर दी बहन को
حسین نے میں ذرا دربار جا رہا ہوں، میں نے بھی کہہ دیا ہے، تم نے بھی سن لیا ہے۔ بابا ثقلین شاہ حسین آخیا میں ذرا دربار جا رہا ہوں، بھائی کی طرف دیکھ کے فرماتی دربار اور اکیلا؟ حسین فرماتے تیری عزت کی قسم ہے ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لاہور سے 35 میل کے فاصلے پہ ہے قصر بطول، 2 محرم تھی، سن 2008 تھا، زاہد بخاری ڈی ایس پی تھے اس وقت، ان کی ہمشیرہ مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، پردے میں بیٹھ کے ماتم کر رہی تھی۔ بابر شاہ جی یہ جملہ کہا میں نے قصر بطول زندہ ہے، لاہور والے زندہ ہیں، یہ نومی یہ وہ بچے زندہ ہیں جو اس مجلس میں موجود تھے۔ اس سیداتی نے چادر اتار کے دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم شروع کیا، اس کے منہ سے خون شروع ہو گیا۔ اس جملے پہ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر کے آنے تک وہ مولا کو پیاری ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے، کون منہ پہ ہاتھ مارے، کون سینے پہ ہاتھ مارے، میں کل زیادہ پڑ گیا، آج جلدی جلدی چھوڑ دوں گا، یہی جملہ سمجھ لو۔ جب غریب نے کہا نا مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا، دامن پکڑ کے یتیم مان لیا تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی۔ یا زہرا حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میری دھیاں، اللہ اکبر۔ او میری ماں، خدا را اس ماں کا ہاتھ پکڑنا، غازی کا واسطہ میری بیٹی ہو، برا حال ہے اس ماں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری بوڑھی ماں گئی، جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی۔ نہیں جانے دوں گی، دامن میں ہاتھ ہے۔ عباس کے دروازے پہ نگاہیں ہیں، حسین کی نظر بہن کے رخ پہ، بہن کی نگاہیں عباس کے دروازے پہ۔ عباس فضل کو سینے پہ سلا کے تلوار ہاتھ میں لے کے جنگ کے آداب سکھا رہے تھے۔ فضل کی ماں نے مٹی پہ بیٹھ کے چادر اتار کے رونا شروع کیا۔ آواز گئی عباس کے کانوں پہ، ترچھی نظر ڈال کے فرماتے فضل کی ماں علی کی حویلی میں بغیر چادر؟ ہمارے گھر میں کنیزوں کو بھی چادروں کے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں آتا، ماتم کو سر نیچے کر لے۔ بی بی نے کہا کیا کروں، حسین کہیں جانا چاہتا ہے، زینب جانے نہیں دیتی، حسین کی نگاہیں بہن پہ ہیں، بہن کی نگاہیں تیرے دروازے پہ ہیں، تو بیٹے کو پیار کر رہا ہے۔ اتنی تیزی سے اٹھا عباس، فضل دائیں جا گرا، تلوار بائیں جا گری، نہ سر پہ امامہ، نہ پاؤں میں نالین، ننگے سر ننگے پاؤں علی حسن۔ ادھر عباس دروازے سے باہر آیا، دامن پکڑ کے بابر شاہ کہہ رہی تھی نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گی، پتہ نہیں شیخ برا کتنا روئے۔ عباس پہ نگاہیں پڑی، دامن چھوڑ کے کہتی جہاں تیرا دل کرے چلا جا، میری چادر کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، میری سکینہ کا ماتم 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 جنہیں نہیں کرنا آتا ان کی مجبوری ہے، میری سکینہ کا معاشی آ گیا، میری ماں ام البنین کا بیٹا آ گیا، اماں بطول کا لد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں نے کل فون بھی سنے ہیں، مجھے بار بار یہ سنی بیٹھا ہے، مجھے بار بار یہی کہا گیا غازی کا واسطہ تھوڑا برمس ہے، یہ حالت اس بچے کے لیے سن کی یہ ہو گئی تھی، یہ گلے سے ہے، اس نے کل مجھے واسطہ دیا تھوڑا پر ایک جملہ مجھے اور غازی کا واسطہ پڑھنے دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ عباس قریب آئے، حسین کی طرف دیکھ کے غازی نے ایک جملہ کہا ہے بابا جی زلزلہ آیا ہے حسین کے گھر میں۔ عباس نے آہستہ سے کہا سچی مچی مجھے کنیز کا بیٹا سمجھتے ہو؟ ہائے ہائے تو سمجھے نہیں، بطول کے بیٹے رو رہے ہیں، نوکر کو بتائی نہیں۔ حسین فرماتے عباس بات ہی کوئی نہیں، میں ذرا دربار جا رہا ہوں، عالیہ جانے نہیں دے رہی۔ دربار کا لفظ آیا، غازی نے دونوں ہاتھ باندھ کے اگر دربار جانا ہے نا اکیلا نہ جا، مجھے سارے ہاشمی لے جانے دے، ان حرامزادوں کو پتہ چلے حسین آباد کتنا ہے۔ غریب نے کہا دیر ہو جائے گی، غازی نے کہا ایک آواز دینے دے، جو آ گیا اسے لے جائیں گے، جو نہ آیا اسے چھوڑ جائیں گے۔ حسین نے کہا اجازت ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے۔ بھری حویلی میں عباس نے آواز دی سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد، مسلم، محمد بن حنفیہ، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد جعفر طیار۔ عباس آوازیں دیتا گیا، اب نہیں آتا ماتم کو
माफी मांग। दरवाजे खुलते गए, कहीं से सज्जाद तलवार लेके, कहीं से अकबर तलवार लेके, कहीं से कासिम तलवार लेके, 18 हाशमी तलवारें लेके बाहर आए। हुसैन ने दीवारों में सर मारा, गाजी करीब आया। सर क्यों मारता है, रोता क्यों है? खुशी की बात है, मैंने एक आवाज दी, सारे आ गए। फरमाते गाजी इसलिए तो रो रहा हूँ, आज मैं जख्मी नहीं हूँ, आज मैं लाशें उठा के थका हुआ नहीं हूँ, आज मैं 3 दिन का प्यासा नहीं हूँ। अरे अब्बास तूने एक आवाज दी, सारे आ गए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा सर सजदे में होगा, शिमर का एक हाथ नहीं आता मातम, नहीं आता मातम। याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा। जी सही, जी जी जी। हाँ जी, और की हुक्म है? हाँ जी, की हुक्म है? छोड़ दिया, छोड़ दिया। अद्धा मिनट और पढ़ा, अद्धा मिनट की इजाजत है? लो फिर, या मैं मर जाऊं या फिर जे नहीं आता मातम हो जाने ते हुसैन जाने। मैनू इस तो उत्ते मसहब ही नहीं आता। 18 हाशमी लेके हुसैन दरबार वलीद के दरवाजे पे गए। फरमाते अब्बास अगर हालात खराब हो गए ना, मैं अल्लाह अकबर की सदा दूंगा, तुम सारे अली हो। मैं हुक्म दे रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा। बाबा जी मिंबर गवाजे मुक गई अज मजलिस पिंडी इस जुमले से। सैयद आंदा एक बारी फिर आख, तुम सारे अली हो। मैं अल्लाह अकबर की सदा दूंगा, मैं हुक्म दे रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं आएगा। बाबा सकलैन साहब तीसरा कदम था हुसैन का। हुसैन को आहत महसूस हुई, पलट के देखा सकीना का माशकी, हुसैन की कमर का जोर अब्बास, हुसैन के पाँव पे पाँव रखता हुआ आ रहा है। हुसैन फरमाते अब्बास मैंने मना तो किया है, फिर क्यों आ रहा है? गाजी सर झुका के कहता है आपने कहा है मेरा रिश्तेदार कोई ना है, तेरा रिश्तेदार अकबर है, तेरा रिश्तेदार कासिम है, तेरा रिश्तेदार सज्जाद है, तेरे रिश्तेदार ओनो मोहम्मद है। कोई तेरी बहन का बेटा, कोई तेरे भाई का बेटा, कोई तेरा अपना बेटा, और मैं रिश्तेदार तो याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा। अद्धा मिनट हो रहा, अद्धा मिनट की हाल हो गया वो मैं सदके हो तेरे मातम दो, मैं रिश्तेदार तो नहीं। हो गए हालात खराब, निकल गया हुसैन के मुंह से अल्लाह अकबर। भाईजान इन आंखों से पड़ा है। अल्लाह मदर सजादी फरमाते अकबर के लिए हुसैन के लबों पे थी, दरवाजा हुसैन के पाँव में जा गिरा। 18 हाशमी नंगी तलवारें लेके जिंदगी में पहली बार लोगों के सामने अब्बास हुसैन की आंखों में आंखें डाल के फरमाते जरा नाम तो बता। जिसने इशारा किया, हाय 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 हाय, जिसने इशारा किया जरा उसका नाम तो बता। फरमाते नहीं अब्बास जलाल में नहीं आना, दीन बचाना है। हुसैन के कहने की देर थी, दीन बचाना है। अब्बास ने कहा अगर अली की बेटी ने मुझसे पूछ लिया अब्बास तू भी जिंदा था और हुसैन के कत्ल का इशारा भी हो गया, मैं क्या करूंगा? हुसैन ने नहीं रुकता, अब्बास अकबर को बुलाया, बेटे के कान में कोई जुमला कहा, अकबर तेजी से चले। अब्बास ने बुलाया, अकबर मैं हुक्म दे रहा हूँ बता बाबा ने क्या कहा है? अकबर ने सर झुका के कहा बाबा ने कहा जा घर से सकीना को ले आ। अब्बास का जलाल खत्म नहीं होता। और मेरी मातम मातम जितने नौकर हो सकीना के, तुम्हें सकीना की कसम है हाथ जरूर मारना। जा मेरी या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, तुम हुसैन की धी का वास्ता मैनू अद्धा जुमला रखन दो। मैं पता है मातमी इंतजार च खड़े ने, मैं मातमी ने देख लिया, ये मेरे पुत्र मेरे हाथ बने ने। हुसैन की धी का वास्ता मैनू अद्धा जुमला और पढ़ दो। सकीना का लफ्ज आया, अब्बास हुसैन के कदमों पे गिरा। जो मनवाना वो मनवा ले, मेरी जिंदगी में बेटी बाग दरबार न बुला। इधर कहा न बुला, उधर सज्जाद की चीखें निकली। अब्बास करीब है, मैं तुझे तो कुछ भी नहीं कहा, तू तो रो रहा है। सज्जाद ने कहा चाचा रो ना, आज मदीने में सहाबियों के दरबार में तुझे अकेली सकीना बर्दाश्त नहीं, शराबियों का दरबार होगा, बेगैरतों का मजमा होगा, मेरी माँ का बुर्का
सकीना के कान फटे हुए